must have seen mapping one set to another set or subset something, some kind of mapping, mathematics mostly. So we need to create some relationship between these two sets. Something same is here. We are talking about two objects. So we have like one to one mapping. Okay. So likewise, we have four mappings: one to one, one to many, many to one, and lastly, many to many. Anyone who never heard these terms before? Okay, so we got four types of mapping in Hibernate. Why we need this? Let's understand the scenario, the requirement, then we will jump over to this concept. Okay, so think about in previous class we created a student object. I'll just take that scenario. So there we created three fields inside the class. Then this one. Okay, so what we have here inside a class: ID, name, and list of subjects. Maybe, and of course, there's not there's no chance of maybe thing. Student is definitely mapped to a student, a teacher, right? So there could be a class teacher, right? And then student can be mapped to the teacher. That's the private teacher and the reference, right? So whatever things are here, it could be the name, the address, these kind of details. Student can also fetch. So likewise, teacher can also fetch student details, all the IDs, names, what kind of subject that student has, and all their details. So what we're up to, we're trying to map two different objects. So far, what we have integer type as a argument, sorry, field, string as a field. Now we are talking about object. We also saw how to map collection in object. Now we are talking about object to object. Okay, object mapping. So to help in this scenario, because again Hibernate will fail. It will fail to understand what is this teacher type. Yesterday we saw when it was int, it was fine. When it was string, it was fine. As soon as we map this thing, Hibernate fails to understand what is this list type. So we have used that annotation, collection elements, element collection. This annotation will help Hibernate to understand that this is actually a collection type. So you can use any type of collection there. Now, once we add this kind of field, Hibernate again fails to understand what is teacher here. It's our object, right? It's a business requirement. So you cannot tell Hibernate explicitly. I mean, you have to tell this explicitly to Hibernate that this is actually a object type, and you need to understand, make this understand to Hibernate that you have to map these two different objects. One is student object, one is teacher object. So in this scenario, we need to perform mapping in Hibernate, and of course, we need some annotations. So good thing is annotations. I mean, in general terms, they are quite straightforward. You don't have to do extra or lots of stuff. One annotation and you're done. So let's start with one-to-one mapping. I hope scenario is clear why we are learning this mapping. Maybe once you face any interview, you will tell, okay, I know Hibernate and the basic stuffs. So they will ask, okay, so you know Hibernate, so what about the mapping? So you can tell the types. Then you might get this question, why, what was the requirement? Why this concept was introduced, right? So then you can tell. So in Hibernate, we have to deal with objects. And when it comes to objects, so there is a chance that one object is dependent, or it requires that object. So we need to map them, and it's not a straightforward way. Hibernate could not understand the type of it. So we have to tell this explicitly to Hibernate that this is an object type, and there is this annotation. So first type is one-to-one mapping. Okay, now what about this? So let's create one scenario. You know, um, it's just one-to-one. Okay, so we don't know what to pick. Any suggestion for one-to-one mapping? Khushbu, tell me some example for one-to-one. So I'll pick that for our code. सर Yep. नहीं है आइडिया अभी कुछ। अरे वन टू वन थिंक अबाउट कोई तो ऑब्जेक्ट सोचो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया स्टूडेंट और टीचर। खैर उसमें वन टू वन पॉसिबल नहीं है।
पर जैसे ऑनलाइन क्लासेस होती हैं कई बार ट्यूशंस वगैरह होते हैं तो वहाँ पे वन टू वन टीचर प्रेफर करता है कि एक स्टूडेंट को एक टीचर पढ़ाए ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। तो एक वो सिनेरियो बन सकता है, पर लीव इट, वी विल यूज दैट इन वन टू मैनी मिसिंग। तो टीचर स्टूडेंट वहाँ मैप कर देंगे। एक कोई ऑब्जेक्ट सोचो, सबके लिए टास्क कि दो ऑब्जेक्ट बताओ जो मैप कर सको, और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो कि एक ऑब्जेक्ट एक ही से मैप हो पाएगा, ऐसा कुछ सोचो। Sir, each subject is associated with it one teacher. सॉरी, वॉइस समझ नहीं आया मेरे को आपकी, वापस बोलिए। सर एक सब्जेक्ट एक ही टीचर को अलॉट हो सकता है, काइंड अच्छा ऑफ। अच्छा, टीचर और सब्जेक्ट। ओके, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं क्योंकि टीचर ऑब्जेक्ट में सर अकाउंट नंबर। हाँ जी, अकाउंट सर नंबर। बैंकिंग अकाउंट नंबर एक अच्छा अच्छा, पर्सन। यस, एक ही अकाउंट नंबर दे सकते हैं। चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देता हूँ मैं। एक पर्सन है, उसके पास एक यूआईडी है, आधार नंबर है ना, उसको ले लेते हैं, बेटर। थोड़ा सा आप लोगों को सबका हो जाएगा। एक पर्सन, तो व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट यूआईडी क्लास और आधार लिख लेता हूँ। ठीक है, आधार कार्ड हो गया या आधार आईडी जो भी कर लो, मैं इसको आधार कार्ड लिख देता हूँ, ये क्लास बनाएंगे हम। सो वी आर गोइंग टू क्रिएट टू क्लासेस, पर्सन एंड आधार कार्ड। फाइन। सो लेट विल कीप दिस सिंपल एज अ सेट कि जब भी कॉन्सेप्ट पढ़ो तो ज़्यादा टफ एग्जाम्पल मत बनाओ, खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। ऑलवेज क्रिएट सिंपल एग्जाम्पल। सो आई टेक आईडी, आईडी मस्ट है क्योंकि हमें प्राइमरी की चाहिए, आईडी तो डालनी पड़ेगी। देन नेम, दैट्स इट। ज़्यादा फीचर ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट समझना है। हम 50 फील्ड डाल सकते हैं पर व्हाट्स द पॉइंट। ये आधार आईडी होगा यहाँ पर, सो आईडी होगी इस टेबल की प्राइमरी की। ओके, देन आई विल से यूआईडी नंबर, आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसे, पर ठीक है, आधार यूआईडी ले लेते हैं। बस दो दो फील्ड रखो, टेक इट सिंपल। नाउ एज ऑफ नाउ वी नो कि एटलीस्ट जो लेजिट पर्सन होगा, है ना, जो चोर आदमी नहीं होगा, तो उसके पास एक आधार कार्ड होगा एक, और वही लिंक्ड होगा उसके सारे अकाउंट ही जिससे भी। ठीक है, सो व्हाट वी हैव हियर, वी हैव अ पर्सन मैप विथ वन आधार कार्ड। And if I need to create one ER diagram, simple Venn diagram, not diagram, ER diagram, so it goes like this, right? So we have one person, one Aadhaar card. That's how we denote or create any diagram for that. I don't know आप लोगों ने ये ग्रेजुएशन पढ़ा होगा, भूलो ये तो कोई बात नहीं, but that's how we create one to one mapping। और ये इसके मैप्स होते हैं कि one person mapped with one Aadhaar card। ठीक है, so we have a class, we have, I mean we have both classes and we have fields। अब further कैसे काम करता है वो देखते हैं। तो let's go over our example। So entity, person class नहीं है, okay, let's create that। So right click, new java class, person, done। Then let's create private int id, string name, okay, simple fields। Now we need, let's generate auto set, this getter setters। Okay, we have getter setters now. Let's create or convert this pojo class to entity class. So what's the point, how to do this, type entity annotation. Okay, system got stuck, entity, and then let's say the table name as well. So table name equals, then I'll call this person underscore tb. Fine, and definitely we need to create id, so there it is, and let's generate it automatically. So generated value strategy equals identity. Okay, done. So we are done with some basic stuffs. Let's do the same for Aadhaar card class. So person, I'll just take screen shortcut. Don't do this. Type yourself for better practice. Aadhaar card done. Then again need to change that, first of all, table name Aadhaar underscore card tb. Then things fine, ID, and I don't need this name. Remove this and remove getter status. Instead of this, I need UID number, the Aadhaar number. So private string, then UID number. Okay, so we are good with both classes. So far, they are not mapped to each other. So now we need to add one field here.
So we have ID, name, and I need to add one more field to complete the scenario. So far they are not mapped. Now they will get mapped. Where I say Aadhaar card as object. Okay, so it's done. Let me just fix it. Okay, so this mapping is complete. So let's do the same in our examples. So person class, let's say private Aadhaar. Oh, what is that? Aadhaar card done. And of course, if you're creating any field, make sure you're creating its status getter. So I'll go at the bottom, click on the bottom, and then right click, source, getter setters, pick your field name, and then OK. So far, all good. Nothing is bothering us. Everything's fine. We have a simple Java mapping. We call this in Java. We call this has a relationship. Okay. Think about what we're doing here. We're saying in Java terminology. Okay. Person class has a Aadhaar card as reference. That's how we read it, right? So person class has a Aadhaar card as a reference. So this mapping is also known as has a relationship. What is a relationship in Java? Anyone? Is a relationship क्या होता है Java में? No? हेलो हाँ जी, yes Manan. सर, जब भी कोई क्लास हम इनहेरिट करते हैं तो Right, inheritance. So when we achieve or imply or apply inheritance, that means we are achieving is a relationship in Java, right? Okay, cool. So हैज रिलेशनशिप आप ऑलरेडी क्लियर दो पॉइंट होते हैं इसमें. हैज रिलेशनशिप मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, और इज रिलेशनशिप जहाँ पे इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट हो रहा है. सो ओके, that's fine. So nothing new for now. Everything's quite simple. Just we added this thing. Okay, let's create its tester. So I'll create one tester. Saving some time, so copy pasting, and I'll say one-to-one tester. In short, one-to-one tester. Okay, I'll remove these comments. Not required at all. Now we are quite aware about it. Okay, fine. So 3 lines are mandatory to do the stuffs. Okay, so these 6 lines are required to complete the body of our call. Now we need to create the person object plus other object and initialize this whole stuff and save in database, right? This is the whole idea. Once you have object, क्या करोगे उस object का जब तक उसको कहीं persist नहीं करोगे. So let's do that. So ideally हमें पहले इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट यूज होगा पर्सन क्लास में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, एंड वंस वी हैव दिस ऑब्जेक्ट कंप्लीट we will use its reference to complete this reference. Okay, so let's do this. So Aadhaar card, okay, then Aadhaar card dot set id not required because हम उसको auto generate कर रहे हैं. So we'll just go for UID number. स्ट्रिंग में दे रखा है क्योंकि 12 डिजिट का होता है, गैस 12 का होता है ना, तो वहाँ पे हमको लॉन्ग देना पड़ता, तो मैंने स्ट्रिंग ले लिया, बेटर है. तो और वट एवर डजेंट मैटर. ओके, ऐसे कुछ होता है. तो दिस इज डन. नाउ आई क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ पर्सन क्लास. सो पर्सन इक्वल्स न्यू पर्सन, देन पर्सन डॉट सेट, अगेन आईडी नॉट रिक्वायर्ड क्योंकि वो ऑटो जनरेट हो जाएगा. नेम सेट कर देते हैं यहाँ पर, लेट्स से राम, एंड देन वी नीड टू सेट दैट Aadhaar card share object as well, and there we go. Right, it's done. So यहाँ पे क्या हुआ, हमने आधार कार्ड का ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैप कर दिया. Now what's next? Once you're done with this, you have to make sure that you are saving both objects.
लेट मी रिपीट अगेन, अगर आप इस ऑब्जेक्ट को सेव करना चाह रहे हो, इस पूरे प्रोसेस को सेव करना चाह रहे हो, तो वी हैव टू मेक श्योर कि आधार कार्ड प्लस पर्सन दोनों ऑब्जेक्ट आपके सेव होने चाहिए. सो विल डू व्हाट, विल से सेशन save. I'll save Aadhaar card object first, then I'll save session dot save person object. अगर ये 10 होते तो इस अप्रोच के हिसाब से आपको 10 बार सेव मेथड कॉल करना पड़ता. यस, अभी वर्स्ट वे है, इसको फिक्स कर देंगे हम लोग. तो अगर अभी हमारे पास दो ऑब्जेक्ट थे, दोनों ऑब्जेक्ट को हमने सेव किया. ऐसा हाइबरनेट कहता है कि जितने ऑब्जेक्ट आप बनाओ सबको सेव करो, वरना वो पर्टिकुलर रो एंट्री नहीं होगी उस कॉलम के अंदर. ठीक है, उस टेबल के अंदर एंट्री नहीं होगी. सर यस. सर जब लाइन नंबर 23 में हम आधार कार्ड पास कर रहे हैं, हम्म. यहाँ पे सर हम आधार कार्ड मतलब न्यू ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते आधार कार्ड का? बना के तो रखा, ये तो रहा. नहीं नहीं, उसी प्लेस पे 23 पे, क्योंकि बेसिकली हम पहले पर्सन की वैल्यू ऐड करेंगे, उसके बाद ही तो हम आधार कार्ड की वैल्यू ऐड करेंगे ना. अगर मैम हम, ये समझ नहीं पाया कि मतलब यहाँ पे तो, यहाँ पे कैसे ऑब्जेक्ट बनाओगे इसका? सर यही पूछ रहा हूँ मैं आपसे. नहीं, कैसे बनाओगे? देखो ना, हमने ये सेटर कटर का आइडिया क्या है? सेटर सेटर बोलता है कि मुझे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दे दो, और ऑब्जेक्ट में जो भी होगा मैं उसको इनिशियलाइज कर दूंगा मैं उस फील्ड तो के सर अंदर. हम यहाँ पे न्यू ऑब्जेक्ट कॉल नहीं कर सकते यानी क्यों इस नहीं कर प्लेस सकते? पे? कर लो. न्यू लिखो यहाँ पर, आधार लिख लो, आधार, अरे अच्छा, आधार कार्ड, देन डॉट सेट. अब ये बताओ, तुम एक लाइन में कितना कोड लिखवाओगे? या तो सेट आईडी कर पाओगे, सेट यूआईडी कर पाओगे, कर तो सकते हो. बट थिंक अबाउट, इफ यू हैव मोर देन टू फील्ड्स, एक लाइन में तो एक लिख पाओगे. जावा तो वन लाइन सपोर्ट करता है ना, तो ये तो ओके सर. पॉसिबल नहीं है. अब इसलिए हमने ऑब्जेक्ट ऊपर बना दिया और नीचे इसका रेफरेंस पास कर दिया. दैट्स द बेस्ट अप्रोच. ओके, इनलाइन तब करो जब एक ऑब्जेक्ट हो और एक ही फील्ड हो. अदरवाइज जो तरीका कहता है कि पहले ऑब्जेक्ट बाहर बनाओ, उसका रेफरेंस अंदर पास कर दो. ठीक है. ओके सर फाइन. ओके फाइन. सो वन थिंग आई मिस्ड, क्या स्टेप है वो? मैंने एंटिटी क्लास बना दिया, इसका मैपिंग कर दी, ये सब मैपिंग अभी रहेगी. मैपिंग नहीं करी हमने अभी, हमने एनोटेशन देखा नहीं है. बट स्टिल वी आर मिसिंग वन वन स्टेप. हाइब्रिड में एक चीज मिस कर रहे हैं हम. ऑब्जेक्ट बना तो दिया, मैपिंग मिस हो रही है कहीं पर इसकी. यूट्यूब क्लास में? विथ क्लास तो हमें ये रहा ना, वो तो सेशन फैक्ट्री देते हैं, उससे काम सॉरी होता है. सर, कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन फाइल. कॉन्फ़िगरेशन, मुझे लगता है बाकी को पता नहीं, या फिर बाकी भूल गए या बोलना नहीं चाह रहे अभी, थकान हो गई है. ओके राइट, सो वी नीड टू परफॉर्म मैपिंग हियर. अगर गाइज ये समझ नहीं आया है, तो जब स्प्रिंग बूट पढ़ोगे और वहां मैं एनोटेशन की बात करूँ तो बिल्कुल ऊपर से उड़ जाएगा. ये जितने एनोटेशन जो मैं बहुत बार कह चुका हूँ, हर बार रिपीट कर रहा हूँ, कि जो हम कर रहे हैं अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू यूज द सेम इन स्प्रिंग बूट. मैं बस एक चेन बनाता जा रहा हूँ. हर एक चेन, हर एक क्लास का एक मतलब है जो आगे यूज होगा. वहां पूछोगे तो मैं नहीं बताने वाला. सही कैसे कह रहा हूँ, आज पूछ लो या आज कन्फ्यूजन क्लियर कर लो. अगर वहां वापस में से बोले कि एनोटेशन का क्या काम करता है, तो मैं नहीं बताऊंगा. सीधी बात, खुद पता करके हो और मुझे समझा देना जब आ जाए तो. आधार कार्ड का ऑब्जेक्ट पास कर दिया. ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट की मैपिंग परफेक्ट हो गई है. ग्रेट. तो अब इस कोड को रन करते हैं. नहीं रन होगा क्योंकि एक मैपिंग, एज अ सेट कि एक एनोटेशन यूज करते हैं टू कनेक्ट दिस क्लासेस. अभी तक हमने उसके बारे में देखा नहीं है, तो रन करते हैं कोड को एंड सी व्हाट्स द एक्सेप्शन और एरर वी विल गेट हियर. कोड रन किया और क्या कहा? सेम एक्सेप्शन और मैसेज हमारे पास आया, मैपिंग एक्सेप्शन. कुड नॉट डिटरमाइन द टाइप. दिस वन किस टेबल पे? पर्सन टेबल पे. किस कॉलम पर? आधार कार्ड कॉलम पर. Same thing happened as I said, कि Hibernate got confused. It says okay, int is fine, string is fine. What about this Aadhaar card thing? I don't understand that, right? So हमको Hibernate को explicitly बताना पड़ेगा कि see, this is my column and you have to treat this as a object, as an object. It will go as an object. So वो कैसे हो पाएगा possible? Through the annotation. So what you have to do? You have to use one annotation at one to one annotation. क्योंकि यही तो एजेंडा है हमारा, कि अभी हम जो मैपिंग हम सीख रहे हैं वो है वन टू वन, वन पर्सन मैप्ड विद वन आधार कार्ड. सो व्हाट आई डू, आई गो बैक टू द पर्सन क्लास, क्योंकि वहीं ऑब्जेक्ट आया है. एरर एरर वहीं पे आई है ना. मैपिंग कॉलम किस पे आया है? आधार कार्ड पे. तो व्हाट आई डू, आई गो बैक हियर और इसका टाइप डिफाइन करना पड़ेगा. तो लिखेंगे एट वन टू वन. डन, इतना ही करना था बस. और नाउ हाइबरनेट अंडरस्टैंड ओके कि ये एंटिटी क्लास है, ये इसकी प्राइमरी की है, एंड दिस इज एक्चुअली अ मैपिंग. दैट मीन दिस इज अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर इसकी मैपिंग होने वाली है. तो लेट्स टर्मिनेट. टर्मिनेट जरूरत नहीं, मैं कर देता हूँ कभी 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 मैनुअली क्लियर कर देना चाहिए. ओके, गोइंग बैक टू टेस्टर क्लास, राइट क्लिक, रन एज एप्लीकेशन, एंड इफ एवरीथिंग गोस फाइन वी शुड गेट अ
perfect message. Okay, here we are. So you guys can see because we are mapping, Hibernate always creates two different type tables. Why? Again, have a look. यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि जब ये क्लास या ये एंटिटी क्लास प्रोसेस करे हाइबरनेट तो एक टेबल क्रिएट करे पर्सन अंडरस्कोर टीबी। जब हाइबरनेट इस क्लास को प्रोसेस करे तो नया टेबल बनाए उसका नाम होगा आधार कार्ड टीबी। सो हम एक्सप्लिसिटली कह रहे हैं कि दो टेबल बननी चाहिए और मैपिंग उनकी होनी चाहिए। तो ये रहा वो क्रिएट टेबल आधार कार्ड टेबल, क्रिएट टेबल पर्सन टेबल। कुछ ऑल्टर कमांड्स टू मैप प्राइमरी कीज एंड फॉरेन कीज, अगर आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है, वरना मैं ऑलरेडी बता चुका था कि JDBC में पढ़ के आइएगा। एंड देन टू इंसर्ट क्वेरीज। वाई टू इंसर्ट क्वेरीज? क्योंकि हमने जो टेस्टर कोड चलाया था, हमने सेव में लिखा आधार कार्ड और सेव लिखा पर्सन। तो अगर आप देखोगे तो इंसर्ट इनटू आधार कार्ड एंड इंसर्ट इनटू पर्सन टेबल। ओके, एंट्रीज लुक्स गुड। तो एक काम कर लेते हैं, डेटाबेस भी चेक कर लेते हैं। ओके, जस्ट गिव अ मिनट, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। Okay, so this is like before and after scenario. So once you use this annotation, it will be fixed. Okay, so this is what we did to fix this error. और अब database check कर लेते हैं. So we have two tables. Refresh. So one is person table, person. There it is. And यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ID, name, और इस बार इसमें एक ID लिख रखी है आधार कार्ड ID, which is 1, और एक टेबल बनाया अलग से आधार कार्ड टेबल। तो यहाँ पर देख सकते हो ये रहा वो चीज़। ओके, सो दैट्स इट। हमारा 1-to-1 मैपिंग का एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ यहाँ पर। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपन, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन। मैं एक अलग से इमेज बना देता हूँ सारा कुछ कि क्या क्या एग्जैक्टली हमने किया। सो वी हैव क्रिएटेड टू क्लासेस। नाउ आई एम सेविंग सम स्पेस, सो यू ऑलरेडी नोज व्हाट इज सेटर गेटर, तो मुझे अब एग्जाम्पल में लिखने की जरूरत नहीं है। सेटर्स एंड गेटर्स, ठीक है। लाइकवाइज वी विल हैव फील्ड्स फॉर आधार कार्ड क्लास, again setters and getters, ठीक है। so we have two classes done. Then what you did, we mapped them here inside one-to-one tester class. इमेज आप जूम करोगे तो जूम हो जाएगा, इसलिए छोटा कर दिया थोड़ा सा, इतना आप कर सकते हो। एंड देयर इट इज 12, and then this is output. Okay, so this is the query which got triggered, and these are the screenshot from table। क्या exactly हुआ क्या डेटाबेस पे, तो जो पर्सन टेबल था उसमें एक एक्स्ट्रा टेबल हाइबरनेट बनाया आधार कार्ड आईडी, and then one more table got created here. This is ID and UID number. Okay, so आधार कार्ड टेबल यहाँ से आया, and then पर्सन टेबल यहाँ से आया, उल्टा हो गया यहाँ पर आया। So this is one-to-one example. गाइस कोई क्वेश्चन डाउट या कुछ रिवाइज करना है, कुछ भी है तो फटाफट बोल दीजिए, else let's move to next mapping. सर Yes, सर हम इसमें बेसिकली एक अलग से कॉलम बना रहे हैं आधार कार्ड आईडी। हाँ हाँ,
सर हम इसमें फॉरेन की का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। वही तो यूज हुआ है, पढ़ो ना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो सर हाइबरनेट ने तो रिक्वेस्ट किया खुद स्पेस से। उसने लिखा है यहाँ पर कि ऑल्टर टेबल पर्सन टेबल, पर्सन टेबल को ऑल्टर करो, एक कंस्ट्रेंट जो कि माइस्क्ल सर्वर का यूनिक की होगा, ऐड कर दो फॉरेन की। फॉरेन की का नाम क्या होगा, आधार कार्ड आईडी, देयर इट इज। रेफरेंसेस आधार कार्ड टेबल, जो यहाँ का प्राइमरी की है वो यहाँ का फॉरेन की बन चुका है। अगर आपको समझना है ये चीज़, वही तो हुआ है, पढ़ो ना, समझ आ गया सर। है ना। हम्म, तो ये प्राइमरी की, यहाँ पे फॉरेन की, और ये यहाँ पर ये इसका प्राइमरी की। तो एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू। थोड़ा सा इसलिए स्क्रीन में टाइम लीजिए, कोई जल्दी नहीं है, आराम से पढ़िए एक एक लाइन को। यहाँ पे तो मैटर नहीं करता, जो एसक्यूएल क्वेरी जो हाइबरनेट जनरेट करिए उसको नोटिस करिए, एवरीथिंग इज क्लियर। तब भी समझना है, आस्क मी। पर एक जो भी टॉपिक है इसको आज ही क्लियर करना है, ये नहीं कि अगले हफ्ते, अब संडे को पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट वीक। ऐसा मत करिएगा प्लीज। ओके, सो दिस आईडी इज एक्चुअली प्राइमरी की, this Aadhaar card ID is actually the foreign key, and this is actually again a primary key of table. Okay, and whatever field we have inserted, this field and this field, it is going here, this is going here. No question I guess. So I'm assuming कि आप लोगों को वन टू वन मैपिंग समझ में आ गई है। प्रैक्टिस जरूरत है, प्रैक्टिस जरूर करिएगा, वरना भूल जाओगे। अगर अभी समझ में आ गया तो बाद में भूल जाओगे। सो दैट्स ऑल अबाउट वन टू वन मैपिंग। सो एक एनोटेशन है, बस उसको यूज़ करना है, एंड इट विल गुड। अगेन हाइपरनेट इज ऑल अबाउट एनोटेशंस। जैसे जीएसपी में हमारे पास टैग्स थे, यहाँ पे एनोटेशंस है, और दिस इज एनोटेशन वी हैव यूज्ड हियर। ओके, दैट्स इट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट मैपिंग, वन टू मैनी। तो क्लियर है, लेफ्ट साइड में हमारा वन होगा, राइट साइड में मैनी होगा। लेफ्ट राइट का क्या सीन है, ये लेफ्ट क्लास है हमारी पर्सन क्लास, तो ये वन थी। आधार कार्ड यहाँ पे ये भी वन था, तो ये लेफ्ट क्लास, ये राइट क्लास। सो वी ऑलवेज टेक लेफ्ट क्लास एज अवर प्राइमरी की। ओके, प्राइमरी टेबल, जो मेन टेबल है उसको हम लेफ्ट में रखेंगे। ये आपको टिप दे रहा हूँ। इनिशियली क्या होता है, जब आप फ्रेमवर्क पढ़ रहे होते हो तो आइडिया नहीं होता कि हम एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्यों हमने इसको ही रखा, इसको क्यों नहीं रखा, है ना। ऐसे तो बोल सकता हो, कोई बोल सकता है कि यार यहाँ पे रख लो मैपिंग, पर्सन को यहाँ मैप कर लो। पर थोड़ा लॉजिकली मैंने सोचा कि आधार एक आईडी है जो पर्सन के साथ मैप्ड है, तो पर्सन उस आईडी को मल्टीपल जगह यूज करेगा। एक बार पर्सन ऑब्जेक्ट बन गया तो ये पर्सन क्लास अब क्या कर सकता है, अपने मल्टीपल अकाउंट्स ओपन कर सकता है बैंक्स में, है ना। कहीं और डॉक्यूमेंट देना होगा उसको तो ये आधार कार्ड यूज कर सकता है। ये आधार कार्ड के साथ पर्सन में आधार कार्ड यूज नहीं होता, आधार कार्ड पर्सन यूज करता है। तो थोड़ा लॉजिक हमने सोचा और एक ऑब्जेक्ट बनाया पर्सन क्लास के अंदर। तो रियल टाइम जावा कैसे काम करता है, रियल टाइम एंटिटी, राइट, रियल टाइम एंटिटी काम करता है। क्लास ऑब्जेक्ट ये सब क्या है, रियल टाइम ऑब्जेक्ट्स तो हैं। आप कहीं भी किसी प्रोजेक्ट में चल जाइए, वहाँ पर रियल टाइम जो सिनेरियोज हैं, बिजनेस लॉजिक होते हैं, उनके हिसाब से हम जावा क्लास बनाते हैं। तो तो हम क्या करते हैं, जब हाइब्रिड में काम करते हैं, लेफ्ट को रखते हैं इंपॉर्टेंट फाइल जो जिस पे सारी चीज़ें डिपेंड होंगी, और राइट साइड उसकी यू कैन से सपोर्टिंग क्लास। ठीक है, इसी बेस पर आगे बढ़ते हैं मैनी टू मैनी, वन टू मैनी पर। तो अगेन वी विल पिक वो टीचर वाला एग्जांपल। सो हियर विल पिक दैट टीचर। तो टीचर की अगेन एक आईडी होगी जो होनी चाहिए, प्राइमरी की। ओके, आईडी डन, नेम डन। अब लोगों को आइडिया हो चुका है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्लास बना दूंगा, मतलब मैपिंग लिख दूंगा यहाँ पर। तो नेक्स्ट जो मैपिंग होगी इसकी स्टूडेंट की होगी, तो वो स्टूडेंट होंगे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। तो हमको ऑलरेडी पता है कि हम कलेक्शन टाइप भी डाल सकते हैं, तो कैसा होता है वो, ऐसा लिस्ट ऑफ स्टूडेंट टाइप स्टूडेंट्स, ये होगा स्ट्रिंग टाइप, राइट, स्ट्रिंग नेम, और ये होगा इंट। ठीक है, डन। देन वी नीड स्टूडेंट क्लास। स्टूडेंट क्लास चाहिए हमको, यहाँ पे क्या होगा, अगेन आईडी इज रिक्वायर्ड, देन यहाँ पे नेम होगा। बस इतना नहीं करना है। ओके, कीप थिंग्स सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो अगेन लेफ्ट
क्लास हमारी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे क्या किया, मल्टीपल स्टूडेंट्स मैंने टीचर के संग मैप कर दिए, और स्टूडेंट क्लास सिंपल रखा, उसमें कुछ ज़्यादा कंटेंट ऐड नहीं करा मैंने। ओके डन। सो क्लास स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो टीचर क्लास एंड देन स्टूडेंट क्लास, दे आर मैप्ड वन टू मैनी। तो कैसे मैपिंग बनती है इसकी, टीचर है कितने, वन, एज्यूम करें वन टीचर है, मल्टीपल सिनेरियोज है कि यहाँ पे एक टीचर की बात हो रही है, मल्टीपल टीचर होंगे होंगे, तो टीचर वन पर स्टूडेंट यहाँ पे होंगे एन, तो एन टाइम स्टूडेंट हो गया वो, वन मोर देन वन होगा इसलिए क्योंकि हम मैनी टू मैनी सिनेरियो को लेके चल रहे हैं। ओके सो वन टू मैनी का सीन क्लियर। अगेन टीचर हैज स्टूडेंट्स, वो रिलेशन बनेगा, इसमें भी अगेन हैज अ रिलेशनशिप है। और चलो फटाफट से इस क्लास को क्रिएट करते हैं। सो स्टॉप दिस होल थिंग, टर्मिनेट, रिमूव ऑल। तो अगेन सेविंग सम टाइम, स्टूडेंट ऑलरेडी है यहाँ पर। चलो फिर क्या करें, एक काम करते हैं, थोड़ा सा सिनेरियो चेंज कर देते हैं, फिर ध्यान नहीं, ध्यान स्टूडेंट की जगह हम कर देते हैं डिपार्टमेंट कर देते हैं, या फिर कोई सजेशन दो, डिपार्टमेंट ना रखे, मुझे डिपार्टमेंट सही लग रहा। टीचर की मैपिंग मल्टीपल किस साथ हो सकती है, सब्जेक्ट कर ले, नहीं सब्जेक्ट की क्लास है ऑलरेडी एक, नहीं सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट कर लेते हैं। क्लासेस हाँ जी, क्लासेस, क्लासेस, ओके वही सब्जेक्ट आ जाएगा ना फिर, क्लास मतलब वही तो होगा। सब्जेक्ट मारते हैं क्योंकि अब लिस्ट ऑफ स्टूडेंट रहेगा ना, अभी कुछ और हो जाएगा। वाई वे चेंजिंग इज बिकॉज हमारे क्लास ऑलरेडी एक क्लास बनी हुई स्टूडेंट की जो मैप कर रही है कलेक्शन को, तो इसको यूज़ नहीं कर रहे हम लोग, चेंज कर देते थोड़ा सा। तो दिस और क्लासेस लिख लेते हैं, चलो क्लासेस कह रहा भाई, तो लिस्ट यहाँ पे कर देंगे सब्जेक्ट जो क्लास होंगी। ओके सब्जेक्ट, और इसका रेफरेंस होगा सब्जेक्ट्स, वाह। ओके एंड आई विल क्रिएट वन क्लास सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की आईडी होगा और उसका नाम होगा। अगेन सिंपल क्लास, ज़्यादा इसमें दिखाना नहीं है एक्स्ट्रा स्टफ्स। ओके सो टीचर सब्जेक्ट, देन विल मैप देम। ओके देन वन टीचर मल्टीपल सब्जेक्ट्स। ओके सो लेट्स क्रिएट टीचर एंड सब्जेक्ट क्लासेस इन Eclipse। सेव करते हैं टाइम, टीचर आईडी नेम तो चाहिए होगा, ये हटा देते हैं, इस तरह ये हटा देते हैं। Okay, so we have this teacher class. Let's change the table name. Okay, so ID name, that's it. सब्जेक्ट बाद में आते हैं, ऐसे ही को क्लास बनाते हैं सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट। ओके नया टेबल बनेगा इसके लिए भी, सो दैट विल गो टू हियर। क्लासेस अब नया बना रहे हो तो डेफिनेटली दे विल बी मार्क्ड एज एंटिटी एनोटेशन, और जब भी कोई क्लास एंटिटी मार्क हो गई तो उसके लिए सेपरेट टेबल ही बनेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। ओके सो दोनों क्लासेस रेडी हैं, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब मैप कर लेते हैं। सो दैट्स एट प्राइवेट list, this time it will go to list type and util से import करना है, and it's a user defined object subject, and subject कॉल कर लेते हैं इसको। then कौन आया, okay now we have a mapping, so let's create status getters for it। so status getters are done। अगेन ये कोड रन नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर हमने इसको बताया नहीं हाइबरनेट को क्या थिंग है, ये क्या है एग्जैक्टली, इंट है, स्ट्रिंग है, या कुछ और है, तो वो करते बाद में। उसके पहले एक इंपॉर्टेंट काम, क्लास मैपिंग इन कॉन्फ़िगरेशन फाइल। तो दो एंट्री करनी पड़ेगी, एक सब्जेक्ट की और एक टीचर की। सब्जेक्ट टीचर, ओके हाईलाइट किया, ओके दोनों है मैपिंग, बढ़िया। नाउ लास्ट थिंग इज रन, टेस्ट करना है, तो इसको करेंगे वन टू मैनी टेस्टर। ओके वन टू मैनी टेस्टर, ओ टी एम टेस्टर, ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है, लास्ट वाली लाइन। तो 6 लाइन्स तो हमें चाहिए, वो मैंडेटरी है, उसके बिना आपको हाइबरनेट कोड नहीं चलेगा, स्टैंडर्ड एप्लीकेशन पे कोड नहीं चलता, ये तो लिखना पड़ेगा। ओके अब हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं,
तो पहले अगेन डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट, ये सपोर्ट कर रहा है तो पहले हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। पर इशू क्या है यहाँ पर, इशू नहीं, रिक्वायरमेंट क्या है कि टीचर को चाहिए मल्टीपल सब्जेक्ट्स, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स, तो विल क्रिएट टू एटलीस्ट, 2 or 3 ऑफ सब्जेक्ट्स विल क्रिएट। सो विल से सब्जेक्ट, subject1, subject, then I'll say subject1 dot set id, id नहीं चाहिए क्योंकि प्राइमरी की है वो, और वो ऑटो जनरेट कर देंगे। नेम लेट्स से java, likewise let's create 3 subjects, 2 3, let's say mysql database 3, let's say devops, okay reference रहेगा ऊपर 2 3। okay so we have 3 subjects ready, time to add them in a collection, क्योंकि ये कलेक्शन हम फर्दर यूज करने वाले हैं। तो पहले से हमारे दिमाग में आइडिया होना चाहिए कि एग्जैक्टली हम बना रहे हैं टीचर का ऑब्जेक्ट, टीचर का आईडी इज ऑटो जनरेटेड, नेम हम कर देंगे पर इसको चाहिए सब्जेक्ट, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स। तो ये डिफरेंट क्लास है, उसकी खुद की फील्ड्स है। तो पहले हम ये ऑब्जेक्ट बनाएंगे कितने, मल्टीपल, ताकि इस लिस्ट फील्ड को इनिशियलाइज कर सकें। सो ये पूरा दिमाग में सिनेरियो होगा। देखो मैंने खुद एज्यूम किया इसलिए मुझे पता है, ऐसे आपको खुद के एग्जांपल सोचने पड़ेंगे। वंस यू रेडी इन दैट कंडीशन, तो खुद के एग्जांपल लिख पाओगे, सोच भी पाओगे कि मुझे कौन सा फील्ड पहले इनिशियलाइज करना है, क्योंकि आपने खुद से रिक्वायरमेंट दे रखी है। ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। तो लेट्स क्रिएट ऑफ सब्जेक्ट टाइप सब्जेक्ट्स, गलत पिक किया, array list, done। now time to add the subject into subject object, subject dot set, नहीं set नहीं add होगा, subject1। okay so we have a collection। now time to create main object, that is teacher। so teacher equals new teacher, then say teacher dot set id auto generated नहीं चाहिए, name let's say कर देते हैं, चलो मैं अपना नाम देता हूँ, now मैं अपना नाम लिखते हैं, okay राम एंड श्याम। now teacher needs subject, so teacher dot set subjects, और यहाँ पे subject ऑलरेडी रेफरेंस है तो वो ऑटो फिल कर देगा इक्लिप्स। डन गाइस, हो गया। तो हमारे ऑब्जेक्ट मैपिंग रेडी है। लास्ट थिंग इज हमें इनको सेव करना है। सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेशन डॉट सेव, पहले हम सीक्वेंस में करेंगे, पहले सब्जेक्ट 1 2 3 एंड देन टीचर ऑब्जेक्ट। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट अगेन आई सजेस्ट कि बेटर तरीका ये है कि जो आपने ऑब्जेक्ट पहले बना कर रखा है पहले उसको सेव करते चलो, जो स्मॉल ऑब्जेक्ट है, जो डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे 2 3 और यहाँ पे जाएगा टीचर। डन। ओके एक थिंग स्टिल मिसिंग, वो हम कर लेंगे फिक्स बाद में। इतना हमारा कोड रेडी है, चल सकता है। तो रन करके देखते हैं, राइट क्लिक, रन एज एप्लीकेशन, एरर आएगा, हाइब्रिड गेट कंफ्यूज्ड कि भाई ये क्या लिख रखा है तुमने, ये क्या टाइप है, ये कुड नॉट डिटरमाइन द टाइप ऑफ लिस्ट। किस टेबल के अंदर, टीचर टेबल के अंदर। कौन सा कॉलम है, सब्जेक्ट कॉलम है। तो अगर हम टीचर्स क्लास में जाके सब्जेक्ट चेक करें तो ये रहा। हाइब्रिड अगर कंफ्यूज हो गया कि 1 to 1 में हमने बताया दिया था उसको, जो कि ये था कि आधार कार्ड है तो 1 to 1 मैपिंग है, समझ गया। अब यहाँ पे लिस्ट आ गया है, अब 1 to 1 तो चलेगा नहीं, तो हम यहाँ लिखेंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड एनोटेशन है, कुछ दिमाग नहीं लगाना। 1 to many की बात हो रही है तो 1 to many ही एक एनोटेशन यहाँ पे बनी हुई है, खत्म। अब ये समझ जाएगा हाइब्रिड। जो ये 1 है गाइस, नोटिस हियर, जो ये पहला 1 है वो एक्चुअली करंट क्लास के लिए है, इसलिए हम हमेशा लेफ्ट में रखते हैं इसको कि लेफ्ट क्लास है, मेन इंपॉर्टेंट क्लास है 1। उसके बाद ये लिखा है मैनी, मैनी होगा जो रेफरेंस यहाँ पास हो रहा है, ये लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स है। तो 1 रेफर टू करंट क्लास, मैनी रेफर्स टू इट्स फील्ड, दिस वन। सो इस तरह समझता है कि ओके, तो ये समझता है कि 1 हो गया टीचर, मैनी हो गया ये लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स। इतना मैपिंग करना है एंटिटी क्लास पे एंड इट्स गुड। अब ये चलना चाहिए, तो पहले काम करते हैं, इतना एनिमेशन निकाल लेते हैं यहाँ से। लेट्स गो टू पेंट, पुट दिस थिंग देयर। ओके हमने क्या लिख रखा है यहाँ पर, दिस थिंग, ये लिखा है विदाउट दिस, इसलिए एरर था। अब हम लिखेंगे एनोटेशन के साथ, दिस इज द फिक्स। ओके इनटू मैनी, डन। अब अगर ये चल गया तो हमारे पास 5 6 और मे बी मोर देन 5 6 वी विल गेट
console SQL queries. So right click, run as application. ठीक है, ज़्यादा ही आई है, एज आई सेड 5 नहीं ज़्यादा आएंगी। तो हाइब्रिड ने क्या करा, आपके लिए 3 टेबल बना दिए। एक तो सब्जेक्ट टीबी, ठीक है, एक टीचर टीबी, वो भी ठीक है, पर इसने एक तीसरा टेबल और बना दिया, टीचर टेबल अंडरस्कोर सब्जेक्ट टीचर। इसने एक और टेबल बना दिया मैपिंग के लिए, सिर्फ और सिर्फ वो टेबल क्या कर रहा है, मैप कर रहा है टीचर और सब्जेक्ट को। फिर बहुत सारे ऑल्टर कमांड चले, कंस्ट्रेंट हुए वही सेम रिलेशनशिप के लिए, प्राइमरी की एंड फॉरेन कीज के लिए। एंड देन आफ्टर जितने भी आपके रोज थे सबको इंसर्ट किया गया। पहले सब्जेक्ट के अंदर 3 इंसर्ट क्वेरी चले, दैट्स फाइन, क्योंकि हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स थे। एक इंसर्ट क्वेरी चली टीचर के अंदर, क्योंकि एक रिकॉर्ड था टीचर के अंदर। बाद में जो थर्ड टेबल, जो मैपिंग का टेबल था, उसके लिए हाइब्रिड ने 3 क्वेरीज और चलाई, सिर्फ और सिर्फ आईडीज के लिए। कैसे पता मुझे आईडी है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ ऑलरेडी, टीचर आईडी, सब्जेक्ट आईडी। So this is what we get if you have a successful one-to-many code execution. तो यहीं पे क्लास को रोक देंगे, हम ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। पहले आप इतना प्रैक्टिस करिए, समझिए एग्जैक्टली हो क्या रहा है स्क्रीन पर। तो थोड़ा सा इसको क्लियर करता हूँ। अभी क्लास 3 रह गया, डेटाबेस चेक करना रह गया ना, कि डेटाबेस में कैसे मैपिंग हुई है, वो भी देखते हैं थोड़ी देर में। Okay, so we need to use one-to-one notation and this will get fixed. Okay, let's have a look on database. So इसको करते हैं close all, रिफ्रेश करते हैं ताकि हमारे नए एंट्री आ सके। तो पहला देखते हैं टीचर टेबल। तो यहाँ पर सिंपल ID1 और टीचर का नाम है श्याम, खत्म, कुछ फालतू डिटेल्स नहीं है। सब्जेक्ट में गए, यहाँ पे भी सिर्फ उतनी चीज़ें जितनी हमें चाहिए थी, जो हमने एंट्री की थी, 1 2 3 जावा, माइस्क्ल और डेवऑप्स। अब जो तीसरा टेबल हाइब्रिड ने बनाया वो ये है, टीचर टेबल, सब्जेक्ट टेबल। यहाँ पे सिर्फ आईडीज की बात होगी। तो प्राइमरी की ऑफ टीचर एंड प्राइमरी की ऑफ सब्जेक्ट गेट्स मैप्ड हियर। तो ID1 टीचर की थी और मल्टीपल आईडीज, यहाँ से देख सकते हो ID1 to 111 है टीचर की, और सेम आईडी मैप हुई है मल्टीपल सब्जेक्ट के साथ। तो इस तरह ये मैपिंग काम करती है वन टू मैनी की इन हाइपरनेट। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं इसको पुट करता हूँ पेंट पर, हैव अ लुक ऑन दैट एंड देन लेट मी नो कि डज इट मेक सेंस और नॉट। तो पहले हमने बनाया टीचर क्लास, देन वी क्रिएटेड सब्जेक्ट क्लास। ओके, getters and getters, राइट, ये चाहिए इन दोनों फील्ड क्लासेस को। ओके, दिस इज डन। व्हाट्स नेक्स्ट, कि जो मैपिंग होती है, मैपिंग मैंने लास्ट क्लास में लगाई थी। तो वी नीड दीज मैपिंग्स इन हाइब्रिड कॉन्फ़िगरेशन फाइल, दिस इज आल्सो डन। व्हाट्स नेक्स्ट, टेस्टर फाइल, वन टू वन टेस्टर फाइल। थोड़ा सा कोड इसका बड़ा है पर सिंपल है, बस फील्ड्स को इनिशियलाइज ही करना है, कुछ और एक्स्ट्रा नहीं किया इस काम में टेबल पे हमने। तो इसको यहाँ रख देता हूँ और नेक्स्ट पेज पे स्क्रीनशॉट्स टेबल के। So this is teacher subject table, this is subject, this is configuration, and this is the actual tester file. And next में देखते हैं queries का output. And if everything goes fine, we should get this kind of data. So यहाँ पे ID और name आ गया, then subject आ गया, then दोनों tables की mapping आ गई। Subject table is here, then teacher table here, then teacher subject table subject, this one. ओके, सो कुछ समझ में आया या सब ऊपर से गया या सबको समझ में आ गया? कोई डाउट क्वेश्चन तो पूछिए भाई, जिसको भी कोई क्वेश्चन है। सर यस,
तो यहाँ पे जो हमने सब्जेक्ट आईडी लिखी हुई है टीचर टीबी सब्जेक्ट टीबी में सर, ये यहाँ वाली। पे हम नाम हाँ सर यही वाली जो इसमें 1 2 3 है वहाँ पे अगर नेम कैसे नेम आना देना चाहे तो ये तो हमने बनाया नहीं ना, ये तो हाइब्रिड कर रहा है ये। हमारा तो काम इन टेबल से हो जाएगा। हाइब्रिड ने बनाया मैपिंग के एसक्यूएल लिए। हम करते हैं तो मतलब एसक्यूएल में हम करते तो ऐसे हो जाता था। हम्म। मतलब एक कॉलम तो यहाँ पे एंटर कर देते मतलब हैं। ये सब मतलब नेम ऐड हो जाए और इसे अगर कैसे पता चला अगर हमें इसे फैच करना हो तो आईडी आ जाएगी सब्जेक्ट राइट आईडी राइट। वगैरह वगैरह। राइट राइट, कि अगर हमें डेटा निकालना कैसा आएगा ना। तो यस ये है सर। एक डिफ़ॉल्ट वे जो क्या कहते हैं हाइब्रिड करता है ये। इतना काम करता है ये। अभी आप देखोगे तो हमने एक चीज़ में मिस कर दी है। आइडली ये, अभी मैं उसी पे आने वाला हूँ कि अभी क्या हुआ कि डेटा तो इंसर्ट हो गया। अब क्या हो रहा है कि अगर आप दोनों टेबल को चेक करोगे तो मुझे अगर टीचर का रिकॉर्ड निकालना है, जैसे कि टीचर क्या सब्जेक्ट पढ़ाता है, तो कैसे पता लगेगा? मुझे फिर इस टेबल जाना पड़ेगा। तो टीचर टेबल पहले इस पे जाएगा, तो मुझे वो पहले से पता होना चाहिए, है ना। तो ये थोड़ा सा हाइब्रिड मिस कर गया एक्चुअली। हम हाइब्रिड मिस नहीं कर रहे, हमने मिस कर दिया ये। हुआ क्या, अगर आप वापस कोड में जाओगे तो हमने सेट सब कुछ करा, एक चीज सेट नहीं करी हमने। वो दिखाता हूँ। टीचर का जो सब्जेक्ट ऐड किया हमने टीचर पे, होता है क्या जब व्हेन वी टॉक अबाउट वन टू मैनी, तो वी, अभी इतना पहले इतना बताओ समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे मैंने लिमिटेशन दिखाऊंगा तब तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो पहले इतना करो, जो आप इशू बता रहे हो वो मैं उसको रिजॉल्व करूंगा कल। इशू है इसमें, अभी ये प्रॉपर नहीं है, ओके परफेक्ट सर। एग्जांपल नहीं है इसमें, अभी लिमिटेशंस है, ठीक है। तो अभी जो हमने बताया सिनेरियो यहाँ पे क्या बन रहा है कि वी हैव अ टीचर वी हैव सब्जेक्ट। पर अगर मुझे टीचर के सब्जेक्ट निकालने हो तो मुझे ये स्टेबल जाना पड़ेगा। पर मुझे तो सब्जेक्ट का नाम ही नहीं पता। एज अ जावा डेवलपर मुझे इतना पता है कि मेरे पास दो एंटिटी क्लासेस हैं, टीचर एंड सब्जेक्ट, एंड आइडियली दे शुड गेट कनेक्टेड। हाइब्रिनेट को हमने कुछ आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दी है, यहाँ पर अभी भी कुछ मैपिंग रह गई है जो हमें इस सब्जेक्ट क्लास में मैप करनी पड़ेगी। वो करने के बाद हाइबरनेट अंडरस्टैंड्स ओके दीज आर टू क्लासेस मैप्ड इन one to many relationship, so I need to create one more column somewhere either in teacher subject or either in teacher table or either in subject table। तो उसमें क्या होगा कि जब when it comes to fetching the record तब वो आसान होगा, क्योंकि एज अ डेवलपर मुझे तो इस टेबल का आइडिया ही नहीं है। अगर मैं ये इसको जो ये क्वेरीज प्रिंट हो रही है बाय द वे, मैं इसको स्टॉप कर सकता हूँ, ये क्वेरी प्रिंट ना हो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है यहाँ जाकर बस ये करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है ना शो एसक्यूएल ट्रू, इसको फॉल्स कर दो, आपकी जितने भी क्वेरीज है प्रिंट नहीं होंगी। तो जब हम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तब इसको हम ट्रू रखते हैं, बट वंस इट गोज ऑन सर्वर, प्रोड सर्वर की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे इसको फॉल्स कर देते हैं। हम इतनी क्वेरीज का करेंगे क्या, इतने सारे क्वेरी प्रिंट होंगे तो सर्वर तो ऐसे भर जाएगा, लॉग फाइल ऐसे भर जाएंगी। तो वी डोंट नीड दैट ऑन प्रोड सर्वर्स। तो उस केस में मुझे पता कैसे चलेगा कि टेबल कौन सा है? रन टाइम पे तो मैं गैस ही नहीं कर सकता कि हाइबरनेट ने क्या टेबल बनाया होगा। सो बेटर कि हम इस कोड को थोड़ा और मॉडिफाई करें, पर इतना कोड भी लिख दोगे तो एटलीस्ट आपका रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है। टुमारो विल टॉक अबाउट कि जब वन टू मैनी मैपिंग हो गई, टेबल में इंसर्ट हो गया रिकॉर्ड, तो फैच कैसे करेंगे। सो दैट्स द क्वेश्चन फॉर टुमारो। और सेम आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ ये चीज़ कि नाउ यू गाइस हैव टू फिगर आउट कि रिकॉर्ड फैच कैसे किया जाए वन टू मैनी मैपिंग में। इतना ही दे रहा हूँ, ज़्यादा नहीं दे रहा मैं। अभी नया फ्रेमवर्क है, तो बाकी चीज़ भी आपके पैरेलल चल रही होंगी आई गेस। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग पढ़ रहे होगे, इसलिए कम होमवर्क दे रहा हूँ मैं अभी इनिशियली। तो टास्क इज fetch records in from रहने दो, fetch records in one to many mapping। okay, so this is scenario कि आपको ऐसे मैपिंग होगी and you have to record, you have to fetch the records from these tables। तो पहले रिकॉर्ड को इंसर्ट करो, देन शो मी कि आप फेच कैसे कर रहे हो रिकॉर्ड को। सो दैट विल गिव यू आइडिया कि कितने वेज हैं रिकॉर्ड फेच करने के। सो दिस विल एक्चुअली टेल यू वन थिंग, मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। वेज टू fetch records from DB by using Hibernate। ठीक है गाइस, तो इतना प्रैक्टिस करिए। दो टास्क दे रहे हैं मैंने कि पहले पता करिए कि कितने तरीके हैं डेटाबेस रिकॉर्ड फैच करने के थ्रू हाइबरनेट, एंड देन जब ये हो जाए तो जो भी मेथड आपको समझ में आए या जो भी तरीका आपको समझ में आए, फैच रिकॉर्ड फ्रॉम डेटाबेस फ्रॉम वन टू मनी मैपिंग। होमवर्क क्लियर है? किसी को क्वेश्चन क्वेरी कि क्या टास्क है, कोई डाउट हो तो पूछ लो।
नो। ठीक है, तो एक चीज और करिएगा जब इतना हो जाए। नाइस, ये अच्छा था। ओके, सो ट्राई मैनी टू मैनी मैपिंग। खुद से एक एग्जांपल लीजिए और ट्राई करिएगा, क्योंकि कल मैं सिर्फ वन टू मैनी का जो रिमेनिंग पार्ट है वो कराऊंगा, उसके बाद फिर जंप करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर जो हाइबरनेट का है, वो होगा एचक्यूएल। ओके, तो इस पर डिस्कस करेंगे, और कल या मैक्स टू मैक्स परसों हाइबरनेट को खत्म करते हैं। इतना बहुत आप लोग के लिए एक रफ आइडिया हो चुका है कि कैसे हाइबरनेट काम करता है, कैसे रन टाइम पे टेबल्स क्रिएट होती हैं, और इफ़ यू नीड टू परफॉर्म CRUD ऑपरेशंस वो ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं मेथड्स के थ्रू कल। तो ये नेक्स्ट टॉपिक हम पिक करेंगे, पर उसके पहले आप लोगों को ये 3 होमवर्क करके आने पड़ेंगे। तो इतना करिए, फिर एचक्यूएल पढ़ते हैं। एचक्यूएल खत्म, एचक्यूएल में कल ही कर लेंगे, क्या इसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड करना। एक रफ आइडिया हो जाएगा, क्योंकि हमें ये सब चीज़ें स्प्रिंग बोट में ट्राई करनी है, इसलिए हमें एचक्यूएल पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, तो दैट विल हेल्प अस इन फ्यूचर क्लासेस। और जब एचक्यूएल हो जाएगा तो क्या, टुडे टुडे इज़ 14 15, तो थर्सडे फ्राइडे स्प्रिंग बोट स्प्रिंग फ्रेमवर्क स्टार्ट करेंगे, स्प्रिंग कोर स्टार्ट करेंगे, स्प्रिंग फ्रेमवर्क, स्प्रिंग बोट नहीं। तो वो नेक्स्ट वीक तक चलेगा, और मे बी यहाँ से हम लोग स्प्रिंग बोट स्टार्ट कर लेंगे। तो ये वीक स्प्रिंग वाला आने वाला है। तो टास्क आएंगे, छुट्टी होगी खत्म, अब कुछ काम नहीं है, सिर्फ पढ़ना है, तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। नो क्वेश्चन गाइस, ऑल गुड। यस सर।